also, those who are attending today's lecture. In the last lecture, we have studied the question number 4B, which is based on the map. Means few questions were, 5 questions were asked on the question number 4B, and you have to observe the map and you have to solve the questions. Today, we will see the question number 6A and B. Actually, question number 6A, I was trying to share back camera and trying to show you how to plot a graph, but I'm finding it is unable. We'll see in the next lecture, or I will make a video on that and definitely share with you. So today we will see in detail question number 6B. Actually, question number 6B is a option to the question number 6A. Means it is also containing the 6 marks and 6 questions will be asked on that. Here you can see one table is given. This type of table you can provided for the question number 6A, and you have to draw a polyline graph. Polyline means what? You have to draw more than one line. Means you have to draw 2 or 3 lines for this line graph, and you can use different type of lines to show the line of different country. For example, if you use a dotted line for Brazil country, then you can use the continuous line to show the India. And for the USA, you can show the dash line, means broken line. Okay. Take out your textbook and see on the page number 48. One line graph is given here and few questions are asked on the basis of this graph. Here you can see the figure 7.5, India trend of urbanization is given here. And on that basis, 4 questions are asked on the graph. Observe this graph. First question is given, what was the percentage of urbanization in 1961? Means you have to find out the percentage of urbanization which is
for the year 1961. And with the observation, you can write the percentage of urbanization in 1961 was 18.0. Means your answer should be like this. You have to write your answer in complete sentence, and then you have to underline your main word of answer. Okay. Then the next question is, in which decade was urbanization? In which decade was urbanization the highest? Means you have to find out in which decade it was highest. How you can calculate for that? Here in the question, what they have asked, in which decade was urbanization the highest? Means you have to find out the percentage which have increased in the urbanization. Means here you can see you have to minus the percentage from the next decade. Means for example, if you minus uh, 1981's percentage, that is 23.3, from that you have to minus the percentage 18.2, means it is previous year's percentage from year 1971, and you have to calculate the difference in that way. The next question, in which decade was the growth of urbanization lowest? Means कौन से डिकेड में जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ थी वो लोवेस्ट हुई थी? तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सेम फॉर्मूला, फर्स्ट डिकेड जो है उससे कितना परसेंटेज वो बड़ा है जैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेम वे से लास्ट डिकेड में भी कितना वो परसेंटेज कम था वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो कौन से डिकेड में ग्रोथ थी अर्बनाइजेशन की वो सबसे लोवेस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखेंगे तो ओनली 18.0 टू 18.2 मींस फ्रॉम 1961 टू 1971 यहाँ तक कितनी हुई है ग्रोथ? ओनली 0.2%। मींस इन द डिकेड 1971 was the lowest growth of urbanization. That should be your answer. We'll see the next question. What inference can you draw regarding India's urbanization after reading the graph? Means here you have to give the general statements by observing the map. Means here you can say that the percentage of urbanization from 1961 to 2011, it is increased from 18.0% to the 31.2%. In this way, you have to infer the answer. Again, you can also take out the analysis after minusing the means from 2011 का जो परसेंटेज था 31.2, हाँ, इससे अगर आप माइनस करोगे 1961 का 18%, तो तुम लोग तो आपको जो मिलेगा परसेंटेज वो रहेगा ऑलमोस्ट 11.0%, sorry 11.2%, and you can also give the statement for this answer. Okay. Here one table is given. Brazil percentage of urbanization, urban population 1960 to 2010. And
On the basis of this table, you have to give the answer of the questions. First question is, what is the interval of the data? Means here you have to find out the interval of the data. Actually, you have to calculate the observe about the data. Means it is given for the decade, or it is given for the 1 year time period, or it is given for the 10 years or 20 years. This type of data, this type of information they are asking. मीन्स आपका अगर ये पूरा ये जो टेबल दिया हुआ है, ये अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा. तो 1961 to 1970, 10 years difference is given here. From 1970 to 1980, again 10 years difference is given. Again from 1980 to 1990, again 1990 to 2000, means only 10 years का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर शो करता है. तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? द इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 years. ऐसा आपका कंप्लीट सेंटेंस में आंसर होना चाहिए. और वो जो 10 years का आप डिफरेंस बता रहे हो, तो 10 years ये जो वर्ड है, इट शुड बी अंडरलाइन. अगेन है, देखो, इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑक्योर रैपिडली. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? तो अर्बनाइजेशन जो दी है वो कभी रैपिडली ग्रो हुई है, उसका आंसर लिखना है. तो अर्बनाइजेशन ऑक्योर्ड रैपिडली इन द डिकेड 1960 to 1970. ये आपका आंसर होना चाहिए. कैसे? हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया? देखो, 47.1 was the percentage of urban population in decade 1960, and it is increased to 56.8% in decade 1970. Means after 10 years it is increased in how much percent? We should calculate. तो उसके लिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो 56.8 जो दिया है परसेंटेज, उसमें से हम 47.1 माइनस करके देखेंगे. सेम वैसे हम क्या करेंगे, हर एक जो डिकेड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो डिफरेंस है ये कैलकुलेट करेंगे, ये मेजर करेंगे. तो यहाँ पर क्लियरली सीन भी है, ज्यादा कुछ ये भी करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि देखो, अगर हम 2000 एंड 2010 की बात करते हैं, मीन्स 2010 में वो कैसे इंक्रीज हुआ है? 81.5 टू 84.6. मीन्स क्लियरली नियर अबाउट कितना है? 3% से इंक्रीज हुआ है. अगर हम 1990 से लेके 2000 तक के कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो कितना होता है? देखो, वो भी ऑलमोस्ट 7% तक के इंक्रीज होता है. अगर हम 1980 से लेके 1990 तक हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो भी कितना होता है? देखो, दिस इज ऑल्सो नियर अबाउट 8%. अगेन 1970 टू 1980 अगर ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो कितना मिलेगा हमें? नियर अबाउट 9.2%. अगेन 1962 1970 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमें डिफरेंस कितना मिलेगा? 10 ऑलमोस्ट 10%. तो इसलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, पीरियड्स को कैलकुलेट करेंगे और तब हमें क्या पता चलेगा कि कौन से पीरियड में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, रैपिडली इंक्रीज हुआ है. अगेन है नेक्स्ट. हाँ, ये जो टेबल दिया है, एक्चुअली इस टेबल के ऊपर तुम लोगों को लाइन ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है फॉर क्वेश्चन नंबर 6A. और लाइन ग्राफ उसको तुम लोग प्लॉट करने के बाद ये जो टेबल है इसको ऑब्जर्व करके भी डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, या फिर वो जो तुम लोग लाइन ग्राफ जो प्लॉट करोगे उसको ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो. पर बेटर वे, ये जो टेबल है इसको ही ऑब्जर्व करके आंसर निकालोगे तो
आंसर ज्यादा फास्ट मिलेंगे और ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे, क्योंकि प्लॉटिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पर जो फिगर्स दिए हैं उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके उसमें से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स अगर तुम लोगों को प्लॉटिंग के लिए टाइम नहीं बचा या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो भी तुम लोग टेबल के ऊपर से जो आंसर्स निकालते हो उसमें तुम लोगों के जो आंसर्स की एक्यूरेसी है ये ज्यादा अच्छे से आएगी। नाउ नेक्स्ट है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंसेस एनालाइजिंग द ग्राफ। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस पूछे हैं, बट देयर इज नो नीड टू मीन्स देयर शुड नॉट बी आस्क्ड अबाउट द राइट टू 5 सेंटेंसेस इन द बोर्ड एग्जाम। तो वहां पर तुम लोगों को नॉट मोर देन 3 सेंटेंसेस लिखने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर दिया है 5 सेंटेंसेस ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, बट बोर्ड एग्जाम में 3 सेंटेंसेस से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखो हमें इसको एनालिसिस करना है, जो भी लाइन ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसको हमें एनालिसिस करके फिर वो सेंटेंसेस लिखने हैं, आंसर लिखना है। तो इसीलिए हम क्या कैसे आंसर लिखेंगे, द ग्राफ कैन बी एनालाइज एज फॉलोज, ऐसा करके हम आंसर में लिखेंगे। एंड उसके बाद पॉइंट 1, फिर पॉइंट 1 लिखेंगे। अभी ये क्या है, ये ब्राजील का परसेंटेज है ना अर्बन पॉपुलेशन का, तो हम कंट्री का नेम डाल के लिखेंगे। इन ब्राजील अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू 2010। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगे क्या? नहीं। हमने क्या लिखा है, क्या बताया, इन ब्राजील अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू 2010। हमने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इट इज क्लियरली सीन ना कि 1960 में द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन वाज 47.1% एंड ईयर बाय ईयर या फिर डिकेड बाय डिकेड इट इज शोइंग द इंक्रीजमेंट, मींस इट इज इंक्रीजिंग। वो टेबल क्या शो कर रहा है कि वो 1960 में 47.1 था, तो वो 2010 तक के 84.6 इतना परसेंट हुआ है। और ये अर्बनाइजेशन कभी भी रिवर्स नहीं आई हुई है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, हम उसको लिख सकते हैं, इट इज शोइंग द इंक्रीज। अगेन नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, 1960 to 1970 the urbanization increased rapidly by 9.7%। वो कैसे हमने बोला, क्योंकि हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके थे कि कौन से वाले डिकेड में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कैसे कितना परसेंट इंक्रीज हुई थी। पहले ही हमने क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे। कैसे किए थे, जो नेक्स्ट डिकेड है उससे पहले के डिकेड का जो परसेंटेज था वो हमने क्या किए थे, माइनस करके देखे थे। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का मतलब इस ग्राफ का क्या करना है, एनालिसिस करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, sometimes they will ask, they will give the pie chart and ask the questions on the basis of that pie chart, and you have to observe the pie chart and write the answers। मीन्स जैसे कि यहाँ पर पाई चार्ट दिया है, दिखाया है, ऐसे ही देखो बुक में दिखाया है ना ऑन द पेज नंबर 53। और ऐसा जब भी पाई चार्ट दिया रहेगा तो उसके बेसिस पे भी अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए तो आपको उसके आंसर्स लिखते आने चाहिए। और ये कभी ये पाई चार्ट जो है ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा तुम लोगों को ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए कौन सा आएगा, ओनली लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ। It can be simple line graph or polyline graph, and simple line graph, simple bar graph और multiple bar graph। तो इन दोनों की तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक तो सिंपल लाइन ग्राफ एंड पॉलीलाइन ग्राफ वे सेम है दोनों का प्लॉटिंग का।
खाली तुम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा जब भी आप ये करोगे ना, मल्टीपल लाइन ग्राफ मीन्स पॉलीलाइन ग्राफ ड्रॉ करोगे उस टाइम पे। एंड सिंपल मोस्ट प्रोबेबली तो सिंपल लाइन ग्राफ एंड सिंपल बार ग्राफ ही पूछा जाता है, और उसके बेसिस पे जैसे हमने यहाँ पर किए थे ना, अभी देखे थे जस्ट नाउ, एक टेबल दिया था और उसके ऊपर लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला, एंड उसके नीचे क्या दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं। सेम वैसे ऐसा टेबल दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6A में, और उस टेबल के टेबल देखिए उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको क्या करना रहेगा, तो उसका प्लॉटिंग करना रहेगा, एंड उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स ग्राफ पेपर पर नहीं लिखने हैं। वो कहाँ पर लिखोगे, जो ग्राफ पेपर पे क्या करना है कि जो टॉप पे आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखोगे, हाँ, विदाउट फेल, और क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करोगे। मींस क्वेश्चन नंबर 6A में ही प्लॉटिंग होता है, क्वेश्चन नंबर 6A में ही ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B में हम ड्रॉ नहीं करते हैं। वहां पर हमें डायरेक्टली क्लियरली दिया रहता है ग्राफ, और हमें क्या करना होता है, उस पे क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स हमें लिखने होते हैं। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6A जो बोला मैंने अभी, उसमें आप लोगों को लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा या फिर बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, और उसके आंसर्स, ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स कहाँ लिखोगे अभी, ठीक है, ग्राफ पेपर के पीछे नहीं लिखना है। तो लिखोगे कहाँ पे, देखो, जैसे कि तुम लोग सीरियली क्वेश्चन सॉल्व करते आओगे ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, देन क्वेश्चन नंबर 5 गिव ज्योग्राफिकल रीजन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर, आपके जो मेन बोर्ड का जो मेन आंसर शीट है वहां पर, उस पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर आएगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, तो वहां पर यू हैव टू मेंशन सी द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, यहाँ पर वहां पर आपको वहां पर क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। ग्राफ के लिए हमने क्या नोट डाली है, तो क्वेश्चन नंबर 6A डालना है, और वहां पर आंसर क्या, आंसर डाल के उसके आगे एरो करके लिखना है सी द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, ऐसा जब भी लिखोगे, ऑन ग्राफ पेपर सप्लीमेंट ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी इट्स फाइन। और उसके नीचे ऐसा नोट लिखने के बाद उसके नीचे ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं वहीं पर आंसर शीट पे, और ग्राफ पेपर पे इसके आंसर्स आप लोग नहीं लिखोगे। पर हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 6A है उसमें फिर सब क्वेश्चन नंबर आएगा 1, 2, 3, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस रहेंगे, तीनों कंपलसरी रहेंगे, और उनके नंबर डाल के फिर आंसर डाल के कंप्लीट सेंटेंस में उसका आंसर लिखना रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6A। अगेन हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6B, ये जो क्वेश्चन नंबर 6B है उसको हम देखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6B जो है ये मोस्टली कहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोगों के इसमें ये जो चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पर पॉपुलेशन का, जहाँ पर क्या किए हैं, मोस्टली ग्राफ दिए हुए हैं। हाँ, ये देखो ग्राफ्स कितने सारे दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे ही आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने पाई चार्ट भी देखा था, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये है पॉपुलेशन चैप्टर, और इसमें ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो देखो ब्राजील का एंड इंडिया का दोनों का सेक्स रेशो दिया हुआ है, और उसके ऊपर ग्राफ ऑलरेडी दिए हैं, और उसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ये हो गया। अगेन उसके बाद देखो एज एंड सेक्स पिरामिड है, ऐसा भी दे सकते हैं वो, और उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन है देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन है देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इस अगेन लिटरेसी रेट, ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो देर आर 5 ग्राफ्स गिवन इन दिस चैप्टर,
और ये जो है इसको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में सेक्स रेशो दिया हुआ है और इसके बेसिस पे क्या है, क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं एंड उसके आंसर जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी है देखो, आ, ये मार्च 19 में पूछा गया था, ये वाला ये जो ग्राफ है इसको मार्च 19 में पूछा गया था इसको। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके आंसर्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द अबव ग्राफ शो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, मतलब वहां पर तो टाइटल दिया ही रहता है, हाँ सेक्स रेशो ये दिया ही रहेगा और हमें क्या करना है, देखो सब आंसर जो है वो आंखों के सामने है, हमें खाली उसको फाइंड आउट करना है एंड देन हमें क्या करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द अबव ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे। देखो, द अबव ग्राफ शो द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। हम ऐसे दोनों कंट्री का क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गिवन द नेम्स, है ना। देखो यहाँ पर सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील फर्स्ट इज एंड देन सेकेंड इज द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमने उसका आंसर क्या लिखा है, द अबव ग्राफ शो द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। इसमें ना मोस्टली गड़बड़ी क्या होती है, देखो इसका आंसर लिखने के टाइम पे क्या पूछा है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। अभी देखो हम लोग यही समझते हैं कि फीमेल के लिए पिंक कलर का लाइन दिया हुआ है, तो हमें इसे यही पता चलता है ना कि पिंक कलर की लाइन मतलब क्या, तो ये फीमेल का रेशो हमें दिखाती है, मतलब कितने फीमेल्स थे पर 1000 मेल के पीछे। पर यहाँ पर जो मेल होता है ना, परसेंटेज ऑफ मेल, तो वो कहाँ पर होता है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑन द वाई एक्सिस। मीन्स यहाँ पर आपको ऐसा अलग से शो किया नहीं रहेगा कि 1000 के वहां पर डैश करके या फिर मार्क करके मेल का परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही ऐसी देखी है कि उसके थ्रू हमें पता चला है कि हमेशा और हमेशा फीमेल का या फिर सेक्स रेशो जो काउंट होता है वो किसके पीछे काउंट होता है, एवरी 1000 मेल के पीछे काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए वो जो है 1000 एक्चुअली इट इज इंक्लूडेड, मतलब इसे हमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमें क्या देखना है यहाँ पर, क्या फाइंड आउट करना है, तो जो फीमेल है वो 1000 से कितना ज्यादा है या कम है, कौन सी कंट्री में है, ये हमें वी हैव टू फाइंड आउट। अभी देखो अगर हम फर्स्ट देखेंगे ब्राजील के सेक्स रेशो के इसमें, तो हमें वो जो पिंक लाइन है मीन्स किसकी, फीमेल की या फिर सेक्स रेशो की, ये क्या है, हमेशा कहाँ दिखी है, 1000 के ऊपर ही दिखी है, 1961 से लेके 2011 तक के, वो हमेशा कैसी दिखती है, मोर देन द मेल पॉपुलेशन। मीन्स मेल का जो परसेंटेज है उससे ज्यादा, अगर हम एवरी 1000 मेल के पीछे कैलकुलेट करते हैं ना सेक्स रेशो, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हिडन 1000 दैट इज द लोअर देन द फीमेल। एंड इन द सेकेंड सेकेंड सेक्स रेशो देखो इंडिया का,
तो वहां पर क्या है, देखो ऊपर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, यहाँ पर 1000 का अगर हम देखेंगे, एक सीधा स्केल लेके रख के देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा, अरे फीमेल का परसेंटेज तो 1961 में 1940 इतना ही था। मीन्स क्या, वन ईच 1000 पीपल जो है मेल जो है उनके पीछे अगर हम देखेंगे तो वो हमें कितना मिलता है, तो 940। मीन्स 1000 मेल के पीछे ओनली 940 फीमेल्स इतने ही अपने इंडिया में देखने को मिलते हैं। सेम वे से 2011 तक भी देखेंगे तो भी वो कभी भी क्या है, ऊपर नहीं गया है, किसके, मेल के जो परसेंटेज है 1000 उसके ऊपर अबव नहीं गया है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो कैसे, इंडिया हैज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन हाईएस्ट नहीं पूछा था, यहाँ पर मेल पॉपुलेशन पूछा था। और वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखो 1000 की अगर भले ही वहां पर लाइन ड्रॉ नहीं की, पर क्या है 1000 जो है मेल, वो क्या है इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल। तो ऐसा इसका आंसर है, इंडिया हैज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन? कौन सी कंट्री में हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है? देखो जस्ट नाउ वी हैव ऑब्जर्व दैट ब्राजील हैज हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन। ये हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। कैसे? अगर हम 1000 से कंपेयर करते हैं तो ब्राजील में ही हमें क्या दिखता है, परसेंटेज ऑफ फीमेल इज मोर देन द मेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has rapid increase in female population after 2001? तो देखो कौन सी कंट्री जो है, कौन सी कंट्री जो है उसमें रैपिड इंक्रीज हुआ है, किसमें, तो फीमेल पॉपुलेशन, और वो भी कभी आफ्टर 2001। अगर हम 2001 के बाद इंक्रीज देखेंगे तो इंडिया में भी हुआ है, बट अगर हम ब्राजील से कंपेयर करेंगे तो ब्राजील का जो इंक्रीज हुआ है फीमेल का पॉपुलेशन, मीन सेक्स रेशियो जो बढ़ा है, वो क्या हुआ है, रैपिडली बढ़ा है एज कंपेयर टू द इंडिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ब्राजील हैज रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1961? तो इंडिया का जो 1961 में जो फीमेल पॉपुलेशन था उसको हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करके लिखना है। तो सेम वे से अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना कि व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया 1961, तो उसकी जगह पे वो ईयर चेंज करके भी दे सकते हैं। या फिर ब्राजील का फीमेल पॉपुलेशन भी पूछ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड राइट इन अ प्रॉपर वे। तो यहाँ पर देखो 1961 में इंडिया का फीमेल पॉपुलेशन कितना था, तो 940 इतना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, फीमेल पॉपुलेशन वाज 940 इन इंडिया इन 1961। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, विच कंट्री हैज मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन? तो हमें कौन सी कंट्री में 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन है उसको निकालना है। देखो इट इज क्लियरली विजिबल, इंडिया का कभी भी 1000 के अबव नहीं गया है फीमेल का रेशो। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ब्राजील हैज मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन। तो ऐसे ही in this way they will ask 6 question in the question number 6B, and all questions are compulsory। और यहाँ पर देखो आप लोगों ने क्या करना है, अगर एकदम कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन नंबर 6A जो कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने सही किया है सब, मतलब स्केल, अगेन द टाइटल ऑफ ग्राफ, अगेन जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के साइड में भी हम जो लिखते हैं
फॉर एग्जाम्पल अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंट, अगेन एक्स एक्सिस पे जो हम लोग लिखते हैं क्या ईयर डालते हैं या फिर डिकेड्स डालते हैं, तो वो भी अगर प्रॉपर वे से किया है, जो स्केल लिया हुआ है वो भी प्रॉपर वे से स्केल लिया है, तो और उसके ये सब प्लॉटिंग अच्छे से किया है एंड उसके नीचे जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे इनके आंसर्स भी सही लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6B इसको तुरंत या फिर इमीडिएटली वहां पर सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जब भी क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B जो है उसको सॉल्व किया तो भी चलेगा, बट जिसको जो लोग अश्योर्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर 6A में कहीं तो भी एक आध मार्क्स इधर उधर जा सकता है, कट हो सकता है, तो वो लोगों ने क्या है क्वेश्चन नंबर 6B जो है उसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी ना क्वेश्चन नंबर 6B में मार्क्स अच्छे से गेन हो सकते हैं, वो भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे? अच्छे से ऑब्जर्व करो और आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, पूरे फुल सेंटेंस में आंसर लिखो और आंसर का जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करो, तो ये 6 मार्क्स पॉकेट में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम जो है दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सेम वे से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखाया है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ऐसा भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया रहेगा और उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चंस पूछे रहेंगे तो हमें उसके आंसर्स लिखते आने चाहिए। ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, मोर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, जस्ट अ मिनट, one more example will solve. ओके, देखो बाकी के जो एग्जाम्पल्स थे वो कौन से थे, अगेन वही चैप्टर नंबर 6 में जो थे बाकी के एग्जाम्पल्स, अगेन बहुत सारे ग्राफ्स थे, वो तो अभी एक ग्राफ हमने सॉल्व करके देखा था। अभी हम क्या करते हैं, बार जो दिया है, बार ग्राफ मीन्स लाइन ग्राफ हमने सॉल्व करके देखा था, अभी हम जो है ना बार ग्राफ उसको कैसे सॉल्व करने का या फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने का, ये सब हम देखेंगे। देखो यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया है, फिगर 9.2, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। अभी इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन हियर।
तो कौन से टाइप का ग्राफ यहाँ पर दिखाया है? यू हैव टू नो द नेम ऑफ दैट ग्राफ और यू हैव टू नो द नेम ऑफ दैट बार। ठीक है, भले ही आपको पता है कि हाँ ये बार ग्राफ है, बट यू कांट राइट इट इज अ सिंपल बार ग्राफ, क्योंकि ये सिंपल बार ग्राफ है ही नहीं। तो कौन सा बार ग्राफ है ये? इट इज कंपाउंड बार ग्राफ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कंपाउंड बार ग्राफ इज शोन हियर। अगेन नेक्स्ट, व्हाट डज ग्राफ शो? ये ग्राफ क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? ठीक है, तो देखो अगर ऑब्जर्व करोगे उसको, क्या दिया है ब्लू कलर में? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म। एंड जो ब्राउन कलर में या फिर रेड कलर, डार्क रेड कलर में दिया हुआ है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। तो कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो टूरिज्म में एंगेज है, टूरिज्म ऑक्यूपेशन में कितना परसेंट पॉपुलेशन एंगेज है, एंड उनका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, वो हमें ब्राउन जो बार है उससे पता चलता है। तो सेम वे से ब्राजील का अगर हम देखेंगे तो इंडिया का भी दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें क्लियरली क्या दिखता है? तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म, द परसेंटेज इज more engaged in India, and the contribution of that population is less as compared to the Brazil. तो सेम वे से वैसे अगर ब्राजील का देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म वो कैसी है? इट इज लेस पीपल एंगेज इन द टूरिज्म, बट their contribution is more as compared to the India. अगेन इतना भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पीपल एंगेज है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो भी हमें क्या देखने को मिलता है? तो पीपल कम एंगेज है, बट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ब्राजील कंट्री में ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखो हम उसके जो आंसर्स कैसे लिखेंगे? द ग्राफ शोज द फॉलोइंग डिटेल्स, ऐसा करके लिखेंगे, देन वन बाय वन सेंटेंस लिखेंगे, एंड वी हैव टू गिव द नंबर टू ईच पॉइंट। जो भी पॉइंट लिखेंगे उसके लिए हमें नंबर देना है। फर्स्ट, the percentage of Brazilian population engaged in tourism in 2016। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये डेटा जो दिया हुआ है ये कैसे 2016 का दिया है, ब्राजील का। ठीक है, और इंडिया का भी वो कैसे पता चला है हमें? क्योंकि फिगर को उन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है, देखो फिगर 9.2 टूरिज्म एंड इकोनॉमी, और ब्रैकेट में दिया है 2016। तो ऐसे हम उसको ऑब्जर्व करके आंसर क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ ब्राजील पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म इन 2016। अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन ब्राजील जीडीपी इन 2016। देखो यही पे हमें क्लियरली विजिबल है ना कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन ब्राजील इन टूरिज्म कितना? 2016। सेम वे से द परसेंटेज, द कंट्रीब्यूशन of tourism in Brazil's GDP in year 2016 also given here, which is shown in the red color. Again ये हो गया, हमने क्या किसके बारे में लिखा? ब्राजील के बारे में। सेम वे से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म इन 2016। सेम हमें सेकेंड बार जो है कंपाउंड बार, उसमें क्या देखने को मिला है? द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म इन 2016। ये एक पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन इंडियाज जीडीपी इन 2016। ऐसे हमें क्या करने हैं? इसका जो ग्राफ जो डिटेल्स शो कर रहा है हम उसको ही लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो which country's tourism has a larger share in the contribution towards GDP? तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है?
लार्जर शेयर है। तो हम उसका आंसर देखो, ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किसका है, मतलब कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में, तो ब्राजील कंट्री का। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ब्राजील टूरिज्म हैज अ लार्जर शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has a larger population engaged in tourism sector but contributes lesser in GDP? मतलब कौन सी कंट्री जो है इसका लार्जर क्या है, एंगेजमेंट है पॉपुलेशन का टूरिज्म में, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, तो जीडीपी में वो कम है, लेजर है। तो उसका आंसर क्या आएगा, इंडिया। क्यों, क्योंकि इंडिया की ही पॉपुलेशन ज्यादा हमें टूरिज्म में एंगेज दिखती है, और उसका ही अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे जीडीपी में हमें कम नजर आता है। तो विल राइट द आंसर, इंडिया हैज अ लार्जर पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूट लेसर इन जीडीपी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज इन टूरिज्म? तो इंडिया का कितना परसेंटेज हमें टूरिज्म में एंगेज देखने को मिलता है? देखो परसेंटेज इज गिवन हियर ऑन द y axis and we have to find out what will be the percentage. It is nearly 9.5. So we'll write the answer, nearly 9.5% of Indian population is engaged in the tourism. Okay, and the last question, how much is the contribution of tourism in India's GDP in 2016? मतलब ईयर 2016 में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कितना था, हाउ मच दैट वाज? तो देखो इट इज मोर देन 8%, so we can write as a 8.5. Then you have to write the answer just like, the contribution of tourism in India's GDP in 2016 is nearly 8.5%. In this way, you have to solve the question 6B. ऐसे ही आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 6 question will be asked on the basis of the graph. Means you have to observe the graph and you have to write the answers of the on the basis of graph, which will be provided in your क्वेश्चन पेपर. तो आप लोगों को जो भी दिया रहेगा ग्राफ, उसके ऊपर उस बेसिस में आप लोगों को उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको सॉल्व करना रहेगा. पर मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 6A भले ही अटेम्प्ट किया है अच्छे से, हाँ उसमें अगर एकदम गारंटीड 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, देन स्किप दिस क्वेश्चन नंबर 6B. अदरवाइज अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. और जिस भी क्वेश्चन नंबर 6A में अगर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द टोटल मार्क्स. तो पूरे मार्क्स के लिए वो कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन नंबर 6B में अगर ज्यादा मिलता है तो उसको ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने आज क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B देखा है, उसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल. विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके मैम, हेलो हेलो